بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے صحیح کلمات ادا کرا دیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیں۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان بن کر کے آتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں، کوئی مخلوق ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، اور نہ تو انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو پھر جو درمیانی وقفہ ہے، عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کو جس مالک و خالق کی مرضی سے دنیا میں بھیجا گیا، جس خالق و مالک کی مرضی سے یہ دنیا سے واپس جائے گا، بیچ والی زندگی بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزار لے، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر انسان کامیابی والی زندگی گزار کر نہیں جاتا۔ اس لیے کہ جس مالک و خالق نے اس انسان کو پیدا کیا، اسی کی بندگی کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اسی کی بندگی کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، تو اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور حقیقت میں بھی حقیقی بندہ وہی ہے جس کے اندر بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندہ ہے۔ اسے صحیح معنوں میں بندہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ بندے کے معنی ہوتے ہیں غلامی کرنا، اور اللہ کی غلامی کرنے والے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم غلام کس کے ہیں، ہم غلامی کرنے والے کس کے ہیں، ہم کس کی مان کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ نے اپنی مرضی سے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اللہ اپنی مرضی سے دنیا سے واپس بلائے گا، تو بیچ والی زندگی بھی اسی کے مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد اور عورت کے لیے اپنی قرب کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی انسان ایمان لائے
اور ایمان لانے کے بعد میں وہ نیک اعمال کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد برے باتوں سے بچ گیا، برے کاموں سے بچ گیا، برے انجامات سے بچ گیا، تو اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ یہ بعض مرتبہ دیکھا گیا اور اپنے بزرگوں سے، اپنے عوام لوگوں سے سنا گیا ہے کہ یہ تاثر عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ عورت کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ولایت کے درجات پانے کا کام تو خواتین کا نہیں ہے۔ عورت کا کام تو یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، گھر کے کام کاج کرتی رہے، بس یہی اتنا کام ہے۔ یہ ولایت کے درجے پانا تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ یہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ دماغ میں بٹھا لینا غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے۔ کسی ایک کا نام نہیں ہے کہ خالص مردوں کو ولایت کا درجہ دیا جائے گا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور اپنی پرانی تاریخوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، ان کو کھول کر کے پڑھیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم سے پہلی خواتین نے اس دین اسلام کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ ان خواتین نے دن اور رات محنت کی ہے اس دین کی خاطر۔ اسلام کے اندر قربانی دینے والی، سب سے پہلے قربانی دینے والی کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی دین اسلام کی خاطر اپنی آنکھوں کو نکلوا دینے والی کوئی مرد نہیں تھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اسی اسلام اور اس دین کی خاطر اپنے 4 بیٹوں کو شہادت کی تلقین بار بار کرنے والی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، جو اپنے بارے میں ہر وقت اللہ سے ڈرتی ہوئی زندگی گزارنے والی، وہ بھی ایک عورت ہے۔ اور قربان جائیے اس ذات اقدس پر کہ جس رب نے اس امت کے اندر ایسی ایسی عورتوں کو پیدا فرمایا کہ قرآن کریم کو سب سے پہلے حفظ کرنے والی اس دنیا کے اندر وہ بھی ایک عورت ہے، جس کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان حضرت عائشہ سے پہلے قرآن کریم کا اس دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ تو عورتوں نے تو ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج کل کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام ولایت کے درجے پانے کا نہیں ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے، اور عاجز تو یوں کہتا ہے، اگر کسی انسان کے 2 اولاد ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کے وسائل اتنے نہ ہو مالی اعتبار سے کہ دونوں کو تعلیم برابر دلوا سکے، تو اس انسان کو چاہیے پہلے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائے۔ اس لیے کہ اگر مرد پڑھا تو فرد پڑھتا ہے، اگر عورت پڑھی تو وہ آنے والی نسلوں کو پڑھا دیتی ہے، آنے والی نسلوں کے اندر تربیت کو مادہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے عاجز کہتا ہے اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم کے دلوانے کی اس وقت میں سخت ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آج سے پہلے اور آج تک جتنے بھی کاملین انسان اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی کاملین انسان اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، وہ جتنے بھی بڑے اللہ والے ہوں، صحابہ ہو، تابعین ہو، ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے، ہر انسان کو، ہر مرد کو بڑا بنانے کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ضرور نظر آتا ہے۔
मैं मिसाल देता चलूं, इस उम्मत के अंदर, और इस उम्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे उलुल आज़म पैगंबर सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में आता है कि अगर खुदा रब्बुल जलाल के बाद कोई जात है तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका है। लेकिन इनके बारे में आप तारीख का मुताला करें, आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा। जब आप पर सबसे पहली वही नाजिल हुई, आप गारे हिरा के अंदर तशरीफ फरमा थे, आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके असली शक्ल में देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा गए और घबरा करके घर तशरीफ लाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। आगे फरमाते हैं, खशियतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है, मेरी जान न निकल जाए, ऐसा डर और ऐसी घबराहट आपके दिल पर होनी शुरू हुई। तो ऐसे माहौल में रहते हुए आपको उन मुश्किल लम्हात में आपको तसल्ली देने वाली आपकी बीवी एक औरत है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको तसल्ली देती है, ए महबूब इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले हो, व तक्सिबुल मादूम व तक़रीउज़ ज़ैफ़ व तहमिलुल कुल्ल हय व तक्सिबुल मादूम। तो आपके बहुत सारे अच्छे अखलाक गिनवाने के बाद में फरमाती है, रब्बुल जलाल की कसम, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप अच्छे इंसान हो। जब ये तसल्ली मिली, दिल को थोड़ा सा सुकून आया, आका अलैहिस्सलाम का दर्द और गम थोड़ा सा दूर हुआ, दिल को सुकून मिला। तो ऐसे मुश्किल लम्हात में हर वक्त तसल्ली देने वाली आपको एक औरत है। तो मालूम हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का किरदार है बीवी की शक्ल में, और यही वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनका निकाह हुआ तो अपना सारा का सारा माल आपके कदमों पर निछावर कर दिया, आपके कदमों पर डाल दिया, जिस माल ने इस्लाम की इब्तिदा में आपको बहुत फायदा पहुंचाया था। आगे चले तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया के अंदर दूसरी शख्सियत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके बारे में आता है कि आपकी कामयाबी के सफर के पीछे, जिसको हम सिर्फ सफर हिजरत कहते हैं, उसके पीछे आपको आपकी बेटी का किरदार नजर आएगा। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, अबू बकर मैं तन्हाई चाहता हूँ। आप अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक मैं हूँ, मेरी बीवी उम्मे रोमान है और 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, इनके अलावा कोई गैर तो नहीं है, आप यही आराम फरमा ले, आपको तन्हाई मिल जाएगी। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू बकर ये तन्हाई नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ है। इतना सुनना था, एक बच्ची थी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी छोटी है, मासूम है, सर के ऊपर एक रुपट्टा ओढ़े हुए है। हिजरत का नाम सुना, सर से रुपट्टा उतारा, उसके 2 टुकड़े किए, एक को पर्दे के लिए अपने सर पर रखती है, दूसरे के अंदर अपने अब्बा हजरत अबू बकर का सामान बांध कर पैक करती है, आपको रुखसत करती है। आप रुखसत हुए ही थे कि हजरत अस्मा के दादा हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा तशरीफ ले आए। आने के बाद में पूछा, अबू बकर कहाँ है? अब हजरत अस्मा कहती है, वो तो जा चुके हैं, वो तो चले गए। अबू कहाफा को दर्द हुआ, उन्हें थोड़ा दर्द महसूस हुआ कि वो सारा सामान ले गया है, कुछ छोड़ भी गया है। तो हजरत अस्मा कहती है, मैंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया, उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, अपने अब्बा अपने दादा का हाथ उन पर रखवा दिया और यूं कहा कि इस पत्थर के पीछे बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो मेरे दादा को तसल्ली हो गई,
वो ये समझे कि इसके पीछे बहुत माल छोड़ करके गया है, खर्चे में कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन हजरत अस्मा रिवायत बयान करती है कि मेरे अब्बा हजरत अबू बकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 5000 दिरहम लेकर के निकले थे और उम्मे रोमान को हुक्म दिया था कि आप हमारा खाना पका कर तैयार करना। बेटी अस्मा से कहा था आप हमारे खाने को, इसलिए कि आप छोटी हो कोई शक नहीं करेगा, आप गारे सोर के अंदर पहुंचा दिया करना। आप हजरत अस्मा कहती है कि मैंने आपकी बात तो कबूल फरमा लिया और मैं खाना लेकर के जाने लगी। एक दिन सही सलामत पहुंच गई, दूसरे दिन जब मैं खाना लेकर के पहुंची तो मेरे चेहरे पर कुछ निशान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निशानात को देखा, मेरी तबीयत गमगीन थी। आप अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अस्मा क्या बात है, आज बड़ी उदास नजर आती हो। इतना सुनना था। हजरत अस्मा कहती है मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, कल जब मैं खाना देकर वापस हो रही थी रास्ते में अबू जहल मिल गया, उसने मुझे बालों से मजबूती से पकड़ा और यूं कहा कि अस्मा तू जानती है, हमें बता कि तेरे अब्बा अबू बकर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है। तो या रसूल अल्लाह, मैंने उसे सच सच बता दिया कि मैं जानती हूँ लेकिन तुझे नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने कहा तू जो चाहे वो कर ले, तुझसे जो हो सकता हो वो कर ले, लेकिन मैं तुझे मोहम्मद अरबी का पता नहीं दूंगी। इतना सुन कहना था कि उसने या रसूल अल्लाह मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर गई, मेरे पर माथे से खून निकल आया, मैं बड़ी दर्द महसूस कर रही थी। उसने मुझे फिर बालों से मजबूती से खड़ा किया और फिर यही जुमले दोहराए कि बता वरना तुझे मार दूंगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने उस अबू जहल से कहा मेरी जान तो तेरे हवाले हो सकती है लेकिन अपने अब्बा और मोहम्मद का पता तुझे नहीं दूंगी। कुर्बान जाइए उस बच्ची पर जो मोहम्मद की आजमत को जानती और पहचानती है, जो मोहम्मद की वक़ात को जानती और पहचानती है। आज हम भी तो उसी नबी के लाडली उम्मती हैं जो उस नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल कर मुस्कुराते फिरते हैं। और वो मासूम बच्ची कहती है कि मैं तुझे अपनी जान तो दे सकती हूँ, मोहम्मद का पता नहीं दूंगी। तो मालूम हुआ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस कामयाब हिजरत के पीछे भी आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा, आपकी बेटी की शक्ल में। आगे चले तो इस तीसरे नंबर पर आते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी कामयाबी के पीछे भी एक औरत का किरदार है। वाक़या बहुत लंबा है, मुख्तसर करता चलूं। मुख्तसर ये कि आप तलवार लेकर निकले कि आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पे कलम कर देना है। रास्ते में चलने लगे तो एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर बड़े गुस्से में हो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हो। सहाबी ने अर्ज किया ए उमर, मोहम्मद के पास बाद में जाना, पहले अपने बहन और बहनों के हालात तो मालूम कर, वो मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था, गुस्से और ज्यादा बढ़ा और अपने बहनों की तरफ रवाना हुए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कि कुछ पढ़े और पढ़ा रहे हैं। आवाज सुनी और गुस्से में हो गए, दस्तक दी। बहन समझ गई कि उमर की आवाज है, उमर के अंदाज है। बहन ने सहाबी रसूल को छुपा दिया, जो कुरान करीम के नुस्खे पड़े हुए थे उसे छुपा दिया। दरवाजा खोला, बहनों से मालूम करते हैं कि बताओ तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मैंने ऐसा सुना है। आप अभी क्या पढ़ रहे थे? मेरे कानों में कुछ अरबी की आवाज आ रही थी, कुरान करीम के कुछ नुस्खे थे, उनको छुपा दिया गया था। जब बहनों ने कहा कि उमर जब दीन इस्लाम सच्चा दीन है तो इसे मानने में कौन सी रुकावटें हैं? इतना सुनना था, बहनों को मारना शुरू कर दिया। बहन बीच में आई तो बहन को भी एक जोरदार थप्पड़ लगाया। बहन नीचे गिरी लेकिन फिर संभल करके उठी और कहा उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ की छाती का दूध मैंने भी पिया है।
उमर, तू मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकता है, लेकिन अब मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। ये अल्फाज सुनने थे, उस उमर का दिल भी मौम हो गया, एक बिजली बनकर के गिरी। मौम होने के बाद में कहा, जरा मुझे दिखाओ तो सही, आखिर तुम पढ़ क्या रही थी। और बहन कहती है, उमर तू नापाक है, तुझे शिरक की नजासत ने नापाक कर दिया है, पहले गुस्ल कर, अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब हो जा, उसके बाद तेरे हाथ में हम इस कुरान करीम के नुस्खे को पकड़ा देंगे। उमर ने गुस्ल किया, गुस्ल के बाद वो सहाबी रसूल भी निकल के आए और कहने लगे, ए उमर तुझे मुबारक हो, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, उमर बिन खत्ताब के जरिए या उमर बिन हश्शाम के जरिए। उमर, तेरे हक में अल्लाह के महबूब की दुआ कबूल हो गई। उसके बाद में कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम खोला तो सूरह ताहा शुरू हो गई। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, पढ़ते पढ़ते चले गए, जब इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ए मेरे बंदो, मैं ही अल्लाह हूं, मेरी ही इबादत करो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। जब ये आयत कान में पड़ी तो फौरन दिल मोम हो गया और कहने लगे, मुझे मोहम्मद के कदमों पर निछावर कर दो, मुझे कलमे की तौफीक दिलवा दो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। वो सहाबी रसूल उस उमर को लेकर के दार अरकम में पहुंचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा किराम को दरवाजा बंद किए हुए सबक पढ़ा रहे हैं। अब एक सहाबी झांक करके देखता है कि उमर है, नंगी तलवार हाथ में लिए हुए है। अल्लाह के रसूल से कहते हैं सहाबी रसूल, या रसूलल्लाह बाहर उमर खड़ा है, नंगी तलवार हाथ में है, आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। उनसे एक दिन पहले हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए थे। आपने फरमाया कि उमर के लिए दरवाजा खोल दो, अगर सही इरादे से है तो हम उसके खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा इरादा है तो उमर की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन भी होगी, और आज ये दुनिया देखेगी कि मामला क्या होगा। लिहाजा दरवाजा खोला गया, वो उमर रसूलुल्लाह के कदमों में आकर बैठ गया और कहता, या रसूलुल्लाह, मैं आपका गुलाम बन गया हूँ, मैं आपका कत्ल हो कर दिया हूँ। अब गौर करें इस वाक़ये पर कि जो उमर तलवार लेकर कत्ल करने के लिए निकला था, उसका दिल खुद गुलाम बन चुका है। ये कुरान करीम की बरकत है। लेकिन उसी वक्त नमाज का टाइम भी हो गया और नमाज के बाद में देखा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफों को दुरुस्त करो। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ नमाज क्यों? मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में पहुंचे, उमर ने एक आवाज लगाई, ए लोगों, अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा कराना हो, अपने बच्चों को यतीम कराना हो, वो उमर के मुकाबले में आ जाओ। आज उमर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ आया है और आज के बाद तमाम मुसलमान यही इबादत क्या करेंगे। तो मालूम हुआ आपको इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत का किरदार है जो कि आपकी बहन है, और इसी कामयाबी के बाद इस्लाम को तरक्की मिली है। और सिर्फ ये चंद वाकयात के बाद में मैं हजरत सहाबा किराम के वाकयात की तवील फहरिस्त ना दोहराते हुए आपको चंद ताबईन के वाकयात बताता चलो। एक नाम आता है हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बारे में लिखा है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत में फरिश्तों को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इम्तियाजी शान अता फरमाई है, इसी तरीके से बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने सूफिया की जमात में इम्तियाजी शान अता फरमाई है। लिहाजा एक मासूम से बच्चे थे, ये छोटे बच्चे थे, बायजीद बस्तामी के वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिदा ने इनकी तरबियत का ठान लिया, वालिदा ने इन्हें मदरसे के अंदर दाखिला कराया और उस्ताद मोहतरम से कहा कि इसे ज्यादा घर न भेजा करना, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाते जाते इसका दिल पढ़ाई से हट जाए और ये खेल कूद में मगन हो जाए। लिहाजा उस्ताद ने इस बात को मंजूर कर लिया। अब पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू
शुरू होता चला गया। एक दिन ये कहते हैं कि मुझे मेरी अम्मी की याद आने लगी। अब मैंने उस्ताद मोहतरम से छुट्टी लेना चाही, लेकिन उस्ताद ने कहा कि वालिदा मना करके गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको भेज देता हूं, लेकिन शर्त एक है कि इतना सारा सबक याद करके सुना दो, उसके बाद आपकी छुट्टी है। उस्ताद ने भी बड़े चालाकी से सबक को कुछ ज्यादा करके बता दिया था ताकि बच्चा याद ना कर सके, और याद ना होगा तो छुट्टी कहां से होगी। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, उनके जहन बहुत तेज था, उन्होंने सबक याद करके सुनाया। उस्ताद ने वादे के मुताबिक भेज दिया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देते हैं, अंदर वालिदा मोहतरमा वुजू कर रही थी। जब आवाज सुनी कि बायजीद बस्तामी है तो कहती है मन दक्कल बाब, मेरा दरवाजा किसने खटखटाया? तो बायजीद कहते हैं कि मैं आपका बायजीद हूँ। वालिदा अंदर से मुखातब होती है कि मेरा भी एक बायजीद नाम का लड़का है, लेकिन मैंने तो उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, वो मदरसे के अंदर पड़ा हुआ है और आलिम बनने के बाद मेरे पास आएगा। ये अल्फाज सुने तो बायजीद समझ गए कि वालिदा दरवाजा खोलना नहीं चाहती, मुझे अल्लाह की राह में दे चुकी हैं, लिहाजा मुझे वापस चले जाना चाहिए। वापस चले गए और जाकर के आलिम बाअमल बने। उसके बाद अपने घर को वापस लौट करके आए। तो यहाँ इस बायजीद को इतना बड़ा सूफी और वक्त का आलिम बनाने में एक औरत का किरदार है जो माँ की शक्ल में नजर आता है। इसी तरीके से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बारे में आता है कि मासूम से बच्चे हैं, चंद साल के हैं। अब इनके वालिदैन बैठे हुए मशवरा कर रहे हैं कि हमें इस बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे डालनी चाहिए। माँ को एक ख्याल आया, माँ ने कहा कि इस बच्चे की तरबियत मैं करूंगी, लिहाजा बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिला कराया। मदरसे से जब आता बच्चा तो माँ से रोटी मांगने लगा कि माँ भूख लगी हुई है, थका हुआ हूँ, कुछ खाने पीने को दे दो। माँ कहती है कि बेटा हमें भी तो अल्लाह खाने को देता है, तुम्हारा रिज़्क़ भी अल्लाह उतारेगा, लिहाजा तुम अल्लाह से मांगो, मुझसे ना मांगो। अब बच्चा कहता अल्लाह से कैसे मांगू? माँ ने कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, दुआ करो। वो मासूम बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा है, अल्लाह थका हुआ हो, तेरा कलाम पढ़कर आया हो, अल्लाह भूख लगी हुई है, मुझे रोटी दे दे। माँ ने थोड़ी फुर्ती के साथ में खाना पकाया, अलमारी के अंदर छुपा दिया। फिर माँ बच्चे से कहा कि अल्लाह ने खाना भेज दिया होगा, अब इस खाने को इस घर में तलाश करो, तुम्हें मिल जाएगा। बच्चे ने ढूंढते ढूंढते अलमारी में पहुंचा, खाना मिला, वो खा लिया। बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इसी तरह बैठती चली गई। अब उसे यकीन हो गया कि खाना देने वाली जात अल्लाह की है। अब वो अपनी माँ से रोजाना वाकया पूछने लगा, अम्मी अल्लाह कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, वो इतनी सारी मखलूक को रिज़्क़ देते हैं, उनके खजानों में कमी नहीं आती होगी। माँ खुश होती रही कि मेरा बच्चा अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में आ रही है। रोजाना सोने से पहले वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की कुछ बातें अपनी माँ से करता, वो सवाल करता, माँ जवाब देती। एक दिन वाकया ये हुआ कि माँ अपने करीब ही किसी तकरीब में चली गई और जाकर के वो ये बात भूल गई कि बेटे का आने का टाइम भी है। अब याद आया काफी देर के बाद, तो वहां से बुर्का ओढ़कर फौरन दौड़ी चली आई और रास्ते में दुआएं कर रही हैं, अल्लाह मैंने तो अपने बच्चे का यकीन बनाने के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दिया था ताकि उसकी मोहब्बत तेरे दिल में बैठ जाए, उसकी अजमत तेरे अजमत उसके दिल में आ जाए, उसकी मोहब्बत तेरे दिल में आ जाए। ऐसा करती रही और दुआ करती रही कि अल्लाह आज तो मेरी इस बात पर पर्दा डाल देना, कहीं ऐसा ना हो मेरी मेहनत जाए हो जाए, तेरा खौफ और तेरी इज्जत जो उसके दिल में बिठाई है वो उसके दिल से निकल ना जाए कि आज तो अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ ना दिया। अब वो दुआ करती हुई आ रही है, घर में आकर देखती है तो बच्चा इत्मीनान से सोया हुआ है। अब माँ ने जल्दी से खाना पकाया, फिर बेटे को उठाया और कहने लगी, बेटे आज तो तुझे बहुत भूख लग रही होगी, अल्लाह ने तुझे खाना नहीं दिया होगा। बेटा हशास बशास बैठा और कहने लगा, अम्मी मैंने थका हुआ था, इसको मदरसे से आया था, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की, दुआ करने के बाद मैंने अपने खाने को तलाश किया तो मुझे आज अलमारी में रोटी नहीं मिली बल्कि फुला चारपाई के नीचे रोटी पड़ी हुई मिली है और उसके साथ में सालन भी नहीं था।
خالی روٹی تھی، جب میں نے وہ کھائی، امی آج سے پہلے ایسی روٹی زندگی میں کبھی نہ کھائی تھی۔ تو معلوم ہوا اللہ نے انہیں رزق دیا تھا۔ تو اس واقعات میں اس بچے کی تربیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ تو اتنے سارے واقعات ہونے کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ عورتیں اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ولایت کے درجات تو بس مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے قرب کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کے اندر سے دین کی وقت نکل چکی ہے، بے حیائی کا جنازہ